Hare Krishna, good evening, welcome all of you all to our Saturday evening Bhagavatam class. We are in the midst of the 9th chapter, Bhagavatam 9th chapter, and that is Bhishma Stuti. So we have completed 1.9.39. So we have to start from 1.9.40. But before we start, let's understand the relevance and importance of Bhishma Stuti. Yes, Chandrakant Prabhu, what do you say? What were you saying? Bhishma Deva showed us how to approach the Lord instead of demigods. Where did he say don't go to demigods? Where did he say don't go to demigods? No. We should be fixed on the Lord so that we can focus on the ultimate goal of our life. Ultimate goal of our life, okay. Something more better and more relevant. Something which will make us understand the importance of Bhishma Stuti. What is special about Bhishma Stuti? Stuti तो आप लोग भी करते हो, है ना? भगवान गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, पैसा दे दे, बच्चे को एडमिशन दे दे, बच्चे का शादी करा दे, प्रमोशन करा दे. So this is called Stuti. This is called begging, and that we call as prayers, and we term it as prayers. That's not prayers. Pray means first thank God, and that's what Bhishma was doing here. He was thanking God. Thank you very much for for showing me that very scene in which you are charging at me, taking the wheel in the hand. He was very grateful. Two things makes Bhishma Stuti very, very important. One is in every case it is we who are running behind God. How many cases do you find when God is running behind you? कभी देखा? Seldom नहीं, never God comes, because हम लोग को क्या सोचते हैं, भक्ति में यही है बस. भगवान सुबह उठा, दिया बत्ती किया, did a lot of so-called chanting of some prayers like Vishnu Sahasranam and all, and that's it. My day is over and my prayer is done. Then Lord also says, that's what you want to confine me to? I am ready to be confined at this level inside your photo or in your vigraha, whatever as the case may be. Still bad. So what do you think? The speciality is, does does God come charging towards you all? Never. But God came charging. Means what? He got 1 point focused attention from God. In the midst of lakhs and crores of people in the war field, he got 1 point focused attention from Lord. That is the speciality. भगवान का पूरा लक्ष्य उनके ऊपर था. और लक्ष्य कब प्राप्त होता है? When you are a true devotee. Otherwise हम लोग सब in name of devotion we are doing something which we feel like is devotion, but that's not true devotion. वो असली devotion भक्ति है ही नहीं. हम भक्ति के नाम पे कुछ कर रहे हैं जिसको लगता है हम ये भक्ति कर रहे हैं. भक्ति के नाम पे कुछ कर रहे हैं बस, something. It's like going around the swimming pool without entering into the water. That's our situation. So one is he got 1 point focused attention. Second important relevance, दूसरी खास बात भक्ति की क्या है? भक्ति की दूसरी खास बात क्या बोले? सॉरी, भीष्म स्तुति की खास बात क्या है दूसरी? Bhishma Pitamaha had Ichha Mrityu. Suppose if all of you are having one boon like that, चलो प्रीति माता जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता, तो आप क्या करते? अनंत काल तक जी के उस जीवन को भोग में लगाते. That's what we all want, no? We all want to become fit. We want
become fit. It's good to be fit, but what is our purpose of being fit? So that we can enjoy more. Similarly, here Bhishma Pitama is giving a different dimension altogether. He is using that quality of his Ichha Mrityu in a way that he used that boon also in the service of the Lord. वो एकमात्र जो उनके पास जो वर मिला था उसको भी भगवान की सेवा में लगा दिया. बेटे, definitely he is in a very discomfortable situation lying on the bed of arrows. बाणों के शैया में लेट के वो खुश नहीं है. अगर हमारा बिस्तर का चद्दर है वो सही नहीं रहता तो हमको नींद नहीं आती, हम लेट नहीं पाते हैं. Just imagine. Why don't you come here, Vishal? Come in front. So we are not able to sleep properly, even if the bed sheet is not all right. Mind you, Bhishma Pitama कहाँ लेटे हुए? Is it a comfortable place? And he is now, चलो bed of arrows पे. कोई कई लोग बीमार रहते हैं, भगवान उठा ले, मुझे नहीं तो उसको उठा ले. कोई ना कोई प्रॉब्लम चलते रहता है, तो मुझे उठा ले या तो उसको उठा ले. He had the liberty, he had the choice. मैं क्यों सब तकलीफ उठाऊं? He could have left. He used that also. आएंगे भगवान, आएंगे भगवान मेरे पास दर्शन देने आएंगे. That is the quality of, that is the greatness, or rather that is what is the one of the core crux of भीष्म स्तुति. भीष्म स्तुति समझना है तो अगर ये दो चीज नहीं समझो तो भीष्म स्तुति समझने का कोई मतलब ही. हर कोई बोलता है अरे भगवान का बस, भगवान जल्दी उठा ले, ये करे वो करे. फाइन फाइन, एवरीथिंग इज गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट दैट दिस व्हाट मेक्स दिस स्पेशल, यूनिक, डिफरेंट, हटके. इसके लिए कहते हैं भक्ति करो तो कैसे करो? ऐसे कि भगवान घूम के आपके साथ भक्ति सत करे, है ना. Madhav Das ji, you all must be knowing. I have told many stories about Madhav Das ji. He was staying in Jagannath Puri and he used to have one-to-one conversation with Lord. So Madhav Das ji told, please come. तो माधव Das ji आए तो जगन्नाथ जी को बोले, जगन्नाथ जी, I am going to Vrindavan. See the relation God is having. माधव Das जी क्या बोल रहे हैं? मैं जा रहा हूं वृंदावन. जगन्नाथ जी बोले रुकना, मुझे भी लेके चल, मैं भी जाना चाहता हूं. आई ऑल्सो वांट टू गो टू वृंदावन. बोले नहीं, आई विल नॉट टेक यू, पांडा लोग मारेंगे मुझे. यहाँ इतने भक्त लोग आ रहे हैं, सो मेनी पीपल आर कमिंग टू विजिट यू, व्हाट विल हैपन? आई एम गोइंग, यू स्टे हियर एज इट इज. यू ईट 8 times a day. How many times you eat? 8 times a day. 8 दिन में 8 बार खाते हो. कहां से रास्ते में मैं तुम्हारे लिए 8 टाइम भोजन अरेंज करूं? It is better you stay here only, keep eating and bless the devotees. मैं, see, look at me, I can stay without food for 2 days also. 2 दिन भी मैं बिना खाना का रह सकता हूं. But for you every day 8 times, कभी चलूंगा, कब लेके जाऊंगा. And those days it used to take months to reach Vrindavan from Jagannath Puri. But he had his own love and affection towards God, so he came out. मंदिर के बाहर आए और घूम के भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने जैसे देखा आंखों में से आंसू टपक गए. भगवान के आंसू. He made himself very strong. नहीं, वृंदावन जाना ही है. माधव दास जी started walking. मुश्किल से ही must have gone for about few kilometers. भूख लगने लगा. भूख लगा है मुझे. मैं तो 2 दिन तक मैं गई टू कंट्रोल माई सेल्फ, माई एंगर, एंड मुझे तुरंत भूख लग गया विद इन few kilometers. जैसे कोई गांव दिखा, वो विलेज में गया, वो
आदमी को पूछा, मैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो मैया ने बोला अच्छा बैठो खिलाती हूँ। तो तुरंत उसने अच्छा रोटी सब्जी सब जो था घर में था खिलाया, और ये गपागप खा रहा है, मदर इज जस्ट ईटिंग। और वो मैया देख रही है मदर जो है, तो उसने देखा क्या हो गया मैया, आप क्यों देख रहे हो ऐसा, कितने निर्दयी हो तुम। क्या हो गया, मैं इतना निर्दय क्या हूं, मतलब यू आर सो हार्टलेस, व्हाट डिड आई डू दैट आई एम हार्टलेस। आपके बगल में एक बच्चा बैठा है, हाँ, उसको एक निवाला खाना नहीं खिलाया, अब खुद खाते जा रहे हो। बच्चा कहां से आया, घूम के देखा, इधर उधर देखा, तो बच्चा दिख नहीं रहा। फिर कहाँ है बच्चा, वो देखो तुम्हारे बगल में कितनी खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा है, सांवला सा बच्चा, आप उसको खिला नहीं रहे हो। He closed his eyes, आंख बंद किया और जगन्नाथ जी पे ध्यान दिया, और जगन्नाथ जी उसको बाल स्वरूप में दिखाई दिया। मतलब क्या हुआ, भगवान उसके साथ उसके चित्त में बैठ के आ गए, came in his heart with him. We can only understand gross things, we can never understand subtle things. So he came in him with his heart. आए तो आए, ओके, तो समझ गए कि भाई ये भगवान है, उनकी वजह से मुझे भूख लग रहा है, एंड नथिंग एल्स। एंड एवरी फ्यू किलोमीटर्स भूख लगता था, एवरी फ्यू किलोमीटर्स भूख लगा, खाया, क्या करेगा, सब जगह स्कूल सिस्टम वाज अपसेट, poor fellow. Fellow used to eat only once a day, or rather skip food for days. This fellow was now eating like every few kilometers he is having, heavily having a nice food. तो finally he reached the outskirts of Vrindavan. वृंदावन के बाहर पहुंच गया। वृंदावन के बाहर पहुंच के बस अब वृंदावन आ गया, हाँ। तो इतने में भगवान अंदर से भूख लगा है, खाना खिलाओ। तो ये सेड ठीक है, अभी मैं तेरे को खाना खिला। तो उसने क्या किया, कुछ चने, इट इज सेड इफ यू ईट चना इट किल्स योर एपेटाइट। चना इज अ वेरी गुड neutralizer of your appetite, and you lose your appetite, you don't feel like eating. He got some chanas and he ate. खा के गया, चलो बाके बिहारी का दर्शन करने। कहाँ पहुंचा, वृंदावन को पहुंच गया। कहाँ बाके बिहारी, कहाँ पे, नहीं, he went to निधिवन में बाके बिहारी वहां से प्रकट हुए, तो निधिवन पहुंचे। वहां तब हरिदास ठाकुर जिंदा थे, वो टाइम की बात है। तो हरिदास ठाकुर इतने में बाहर आए। व्हाट वाज हरिदास का ठाकुर का स्पेशलिटी क्या था, उनकी पूजा का विधि का स्पेशलिटी क्या था, रोज 56 भोग बना के खिलाते थे भगवान को। डेली देयर वाज 56 भोग फॉर बाके बिहारी, डेली। And the best part was he used to never eat the 56 भोग। भगवान के लिए 56 भोग बनाते, बढ़िया खिलाते, भगवान को खिलाने के, भोग लगाने के बाद साधु संतों को खिलाते। साधु संतों को खिलाने के बाद अगर कोई गरीब भगत है तो उसको खिलाते, एंड इफ एनीथिंग वाज लेफ्ट ही वुड गो टू यमुना एंड पुट इट एंड फीड द फिशेस। और खुद क्या खाते, 2 लिट्टी लेते, हाँ, लिट्टी मतलब लाइक balls of your wheat पाउडर जो है ना, जो सत्तू या wheat पाउडर बोलते हैं ना, उसका ये बनाते, 2 wooden balls बनाते, two food balls बनाते, वो आग में डाल देते उसको, put it in fire, भट्टी में डाल के उसको पका लेते थे, और वो 2 हाथ में लेते और क्या करते थे, भगवान की बलैया देते। नजर उतारते थे भगवान को, मेरे भगवान पे नजर ना लग जाए, तो ऐसे लगाते थे और फिर ऐसे घुमाते थे, और वो निकाला हुआ, जो नजर निकाला उतारा हुआ वो जो बाटी थी या लिट्टी थी, उसको जमुना के जल में डुबा के खाते थे। दिस वॉज डेली प्रोग्राम ऑफ हरिदास ठाकुर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड, है ना। 56 भोग है तो भगवान क्या क्या आइटम लगाया भगवान को, हाँ, भगवान से ज्यादा आप लोग को अपने को उत्सुकता रहती है कि क्या क्या आइटम है।
एंड उसमें से चूज भी कर लेते, ये मैं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, आई विल ईट दिस, आई विल ईट दिस, ये मेरे मुझे बहुत फेवरेट है. अरे व्हाट इज फेवरेट फॉर द लॉर्ड यू सी ना, बट दैट्स आवर आउटलुक. तो हरिदास ठाकुर केम सर्चिंग, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड निधिवन में, बाकी बिहारी है, ह्यूज क्राउड इज देयर. एंड हरिदास ठाकुर, अरे भाई यहाँ माधवदास कौन है? शॉक, मेरे आने के पहले मेरा न्यूज कैसे पहुंचा? आई एम माधवदास. हाँ अच्छा, आप माधवदास, तो आपको कैसे पता चला? नहीं, आपके बारे में हमारे बाकी बिहारी जी ने बोला. बोला क्या बोला? बोला वो भी मैंने 56 भोग बना के लगाया भगवान के सामने, यू नो, वैराइटीज ऑफ फूड आई केप्ट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड. और हमारे भगवान ने बोले वो माधवदास जी ने मुझे चना खिला के मेरा भूख खत्म कर दिया और मुंह घुमा के बैठे. What does this mean? What does this mean? Lord, whether be it be Jagannath ji, whether be it be in Baki Bihari, or whether be anywhere, it's the same. You or who, a true devotee carries Lord with him. भक्त भगवान को साथ लेके चलता है. And Lord reciprocates. 100% Lord reciprocates. When Lord reciprocates, that time you consider you are in devotion. The day till God doesn't reciprocate to you, please आप अपने आप को भगत मत समझना. आप अपने आप को भगत कब समझोगे? जब भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, या आपके साथ what is the word for Hindi for reciprocation? आदान प्रदान. ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, तब तक आप भक्ति में नहीं हो. वो तो एक तरफा प्यार है. एक बार एक लड़का सीधा करते हैं, भैया मुझे प्यार हो गया, शादी करना. अच्छा, तो शादी करा, तो लड़की कौन है? फलाना फलाना है. अच्छा ओके, तो बात कहाँ तक बढ़ी? 50% डन. अच्छा 50% डन, कैसा? मेरे तरफ से हाँ है ना, 50% डन. उसकी तरफ से नहीं, मगर मेरे तरफ से है. हमारा भक्ति भी कुछ ऐसे ही, 50% डन फ्रॉम आवर साइड, बट द रेस्ट 50% जो करवा सकता है, he is in devotion. Otherwise, he is something called, which I call as, is my terminology, pseudo devotion. We are all into pseudo devotion. We call it something like devotion, but it is never devotion. Okay, let's start with the class. 40, right? ललित गति विलास वल्गुहास्य प्रणय निरीक्ष्य कल्पित उरुमानः कृतमत कृतवत्य उन्मदान्तः प्रकृतिम आगन कलिवत्स्य गोपवद्यः. Let my mind be fixed on Lord Krishna, whose motions and smiles of love attracts the damsels of Vrajadham, the gopis. The damsels imitated the characteristic movement of the Lord after his disappearance from the Ras dance. So here Bhishma Pitama क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Let my mind be fixed. The biggest problem is fixing our mind on God. We are ready to fix our mind on the entire world, but not on God. Because we think we are not yet convinced that that is our only purpose of life. So one may say, क्या प्रभु जी काम धंधा छोड़ के भी बस भगवान भगवान करें, हरे कृष्णा करें. When Arjuna was fighting the war, he was not saying, नहीं एक मिनट, हरे कृष्णा, then he fired an arrow. He was totally focused that either you kill or you get killed. That's the situation in war. And we all are in a war, like in our true life, day-to-day life situation. Day-to-day life is a war. Sometimes it is from the house front, or sometimes it is from our office front, or from the business front, from relatives, society, this and that. The war is new. Every day it's a new battle. But there is a battle, for sure. So don't worry. That is why Krishna gave that advice only to Arjuna. Because we are also Arjunas.
यू आर ऑल्सो हैविंग अ फाइट डेली। एंड क्या करना है उसके लिए? युद्ध रोज लड़ना है हमको। जिंदगी एक युद्ध है, तो रोज युद्ध लड़ना है, तो क्या करना है? चित्त कैसे भगवान को लगाना है? You know, turtles lay their eggs in the shore and they go into the water. But it is said, as per Shastra, they nurture the eggs. You know, birds sit on the, that's what is called as hatching the egg. You know, the birds sit on the egg to hatch the egg, give them warmth. Turtles never do that. कछुआ जो है अपने अंडे समुद्र के किनारे या जल के किनारे डाल के पानी में जाके रहेगा, मगर अपना ध्यान, अपना चित्त उस अंडे पे लगाते हुए उसको नर्चर करता है, उसको व्हाट इज से फॉर हिंदी इन व्हाट इज वो नर्चर, पोषण करता है, उसको पोषण करता है। एंड बराबर व्हेन द टाइम इज दैट फॉर द एग्स टू हैच, द टर्टल विल। उसी तरह है, वी ऑल हैव टू बी इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, मगर फोकस हैज टू बी ऑन गॉड। Now people enjoy having extramarital affair, but they never want to have an extramarital affair with God. The best way, Chaitanya Mahaprabhu says, people, most of the material people, in today's date, it's a pride to have an extramarital affair. Both the lady also has, the gents also have. But please do understand, instead of wasting their valuable human birth, अपना मनुष्य जीवन को इन फालतू चीजों पे पीछे लगाने से अच्छा है we invest it on love. Because material world is not at all enjoyable, but we are still not convinced. वो गन्ने का जूस का मशीन देखा, गन्ने को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेगा, डालेगा, पहला डाल दो काफी जूस निकलेगा, थोड़ा और सेकेंड राउंड में थोड़ा और, तीसरा राउंड में, चौथा राउंड में द गन्ना इज लाइक टोटली ट्विस्टेड, ट्वांगल्ड, एंड उसको गन्ने का मशीन में डालेगा, और कितना सा निकलेगा? मुश्किल से 4 चम्मच निकलेगा। हम भी वही कर, जीवन में है ही नहीं, रस नहीं है, बट हमने जीवन को टेढ़ा करके घुसा रहे हैं मशीन के अंदर, कुछ ना कुछ निकलेगा। एक्चुअली वी आर ओनली गेटिंग क्रश्ड, द एसेंस कमिंग आउट इज हार्डली। कहीं ना अपने पास कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग अटक जाते हैं, भक्ति करने के मार्ग से हम लोग अटक जाते हैं। So Lord is saying, so Bhishma Pitha is saying, let my mind fix on Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadham. गोपियों को भी attract किया. That means what? What do you understand from this statement? Clue is just I said few minutes before. चलो किसको याद? Clue दे रहा हूं, कुछ मिनट पहले के मेरे को कुछ बोला, अरे गोपीज वर स्पेशल बिकॉज कृष्णा वाज रनिंग बिहाइंड द गोपीज, बिकॉज दे वर प्योर डिवोटीज। द प्रॉब्लम इज इन मेटेरियल वर्ल्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, द रूल विच वी और द जनरल तरीका जो है भौतिक दुनिया में, जिससे एक स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, हम उसी आकर्षण को भगवान के और गोपियों के बीच में लगाने की कोशिश करते हैं। तकलीफ यहां है इसकी वजह से, क्यों? वी हैव नॉट येट मैच्योर्ड, वी हैव नॉट येट डेवलप्ड। हमारा लेवल उतना ही है, हमारा लेवल को हमने बढ़ाया नहीं। वी हैव नॉट इंक्रीज्ड और वी हैव नॉट डेवलप्ड आवर माइंड, वी आर स्टिल इन दैट। इट इज लाइक अगर किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर कॉलेज के क्लास में बैठा दे कि भाई मैथ्स क्या है, बच्चे को पूछे तो वो बोलेगा 3 + 2 5, दैट्स व्हाट अ जूनियर केजी चाइल्ड वुड डू, बट व्हाट वुड अ 7th or 9th स्टैंडर्ड बॉय वुड डू? a + b the whole square is equal to a² + 2ab + b²।
वे बोले ये थोड़ी मैथ्स है, मैथ्स तो ये गलत नहीं, मगर क्यों? उसकी बुद्धि की विकास होना बाकी है। उसी तरह यहाँ पे भक्ति में जिस व्यक्ति का चित्त विकास होगा ना, वो ही गोपियों के भाव को समझ पाएगा। We have not matured. That is the reason why we are not able to understand. But again, just to add to a pun to it, tell me honestly. I mean, I'm having CA, engineer, businessman, and doctors, and a number of varieties of people. हाँ, tell me, कितने लोगों ने जीवन में a+b² का फॉर्मूला लगाया? क्या? फिर भी मर के पढ़ा, मार खा के पढ़ा, है ना? हम लोग उस ज्ञान के लिए मार खा के पढ़े, मगर ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कभी any interest? You see, anytime you are interviewed, say Baba Black Sheep, say. Did they ask you? Did they ask you in the marine industry? Did they ask you say twinkle twinkle little star? Huh? Did they say? कहीं पूछा आपको? बट हम लोग उन चीजों पे पूरा फोकस, ट्यूशन डाल के, ये सब डाल के हम लोग उसको पढ़ाते हैं। अगर कभी कोई श्लोका सिखाना हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा ठीक है, बेट। तो हाँ, so that is what is important. He was attracted by the damsels of, or the gopis were attracted towards him just because of his smile, because actually he has an incorporated smile. We all don't have an incorporated smile. Built-in smile ही नहीं, बोलना पड़ता है स्माइल। आजकल वही है ना, why don't we have a normal face? कोई नॉर्मल फेस के साथ एक फोटो निकालता है क्या? Why? ही नहीं, खुशी नहीं है। You want to express, you want to show that you are happy, but you are not. Whereas Lord is the one, He is Atmaram. He is self-satisfied. We are the most unsatisfied, and He is the most satisfied. हर चीज में अनसेटिस्फैक्शन है हम लोग। So please understand, that is the greatness of these gopis. मुनिगण वार्य संकुलयन्तः ससदि युधिष्ठिर राजस्यु येषाम् अपहराम उपेद ईक्षणायो मम दृश्य गोचर एव अभि आत्मः। Here Bhishma Pitamaha is referring to the Rajasuya Yajna. What happened in the Rajasuya Yajna? At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthira, there was the greatest assembly of all the elite men of world, the royal and the learned orders, and in the great assembly Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remember the incidents in order to keep my mind on the Lord, upon the Lord. What is the Rajasuya incident? Can anyone tell me? Krishna had accepted the seva. Chappal seva. But what was the actual Rajasuya incident? क्या था? Rajasuya यज्ञ. All are ingredients. What was the actual program? Yudhishthira Maharaj was to be declared the Chakravarti Samrat. सबसे बड़ा दुनिया का धनुष अश्वमेध यज्ञ करके वो चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे तो इतने लोग आए थे, राजा और ग्रेट विजिटर्स। तो when these kings came, they brought lot of gifts. So the entire Pandavas and Kauravas were given various seva. Duryodhana was deliberately given the seva of taking care of the gifts from those various kings.
क्यों? ताकि अच्छा जले। ये भी आया, 100 टन सोना आया, ये आया, चांदी आया, हीरे आए, मोती आए, दूसरे का अच्छा हो रहा है, he cannot back. Bhima as usual kitchen in charge. खाएगा, खिलाएगा, खाएगा, खाने. So he was in charge of kitchen. So various Arjuna was looking after the invitees. Krishna said, I will take care of the chappals. Because इतने लोग आ रहे हैं, big all royal people, so I will take care of the chappals. So what was Krishna trying to show? And though I am the supreme personality of Godhead, for the sake of the devotees, भक्तों के लिए मैं सबसे छोटा से छोटा सेवा करने के लिए तैयार हूं. कि वो सेवा कोई लेने को तैयार नहीं है ना. हम लोग के यहाँ भी अगर किसी को बोलते हैं प्रभु माता आप कल से चप्पल का देखो, मेरे को चप्पल का दे दिया, I'd rather change my group. See, when I can't leave, when I can't change, I can change my group. No, I cannot change. I change the group or the group leader, whatever it is. So the point what I'm trying to say is, he had taken that seva, and वहीं पे the राजसी यज्ञ में सबसे बड़ा इंसिडेंट ऑफ शिशुपाल है. क्योंकि शिशुपाल न्यू कि आज मैं 100 के ऊपर गाली दूंगा. उसकी माला बनाया था ना, 99 वाला माला. हम लोग ऐसे 108 वाला माला रखते हैं, 99. बिकॉज 100 जिस दिन गाली देगा उस दिन कृष्ण ने बोल दिया था उसकी माँ को मैं मार दूंगा. तो डेली गाली देता, डेली. वो भी अच्छा, जो भगवान का नाम लेते लेते, that is the speciality. Whether you take the medicine knowingly or unknowingly, the medicine will have its effect. तो भगवान का नाम ले रहा था वो रोज. But the worst part is, शिशुपाल भी भगवान का नाम लेता था, पर कुछ भक्त लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते. What a tragedy. We are not even fit to be भले वो कमीना था. Most Krishna conscious was Kamsa. You know that? Yeah. He could see in water, he could see in food, he could see वहाँ पे, यहाँ पे, everywhere. You know, like old movies. I still remember 70s, where the hero used to see the heroine everywhere. in the water glass, in the clock, as which is the ghost. But it used to be seen everywhere. Similarly, Kamsa could see Krishna everywhere. He was truly Krishna conscious. That is the real understanding of Krishna consciousness. At all times, when you are aware of God, you are Krishna conscious. So, what I was saying? Shishupal. He was गाली. वहाँ पे he said, if he tries to kill me, blood will come out. खून निकलेगा बाहर अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा कृष्ण तो, और खून निकलेगा तो यज्ञ विफल हो जाएगा, मतलब the यज्ञ will be nullified. So he was overconfident, but Krishna was too smart. क्या किया उसने? जब वो गाली देते गया, 99 क्रॉस किया, 100 ready, shoot, and there the Sudarshan Chakra cut off his head in such a way that not a drop of blood fell on the floor. And उसके बाद वो कब हुआ? जब कृष्ण was nominated for अग्र पूजा. What is अग्र पूजा? जब चक्रवर्ती राजा किसी को घोषित किया जाता है, he is not answerable to anyone in the world. कोई भी उसको सवाल नहीं पूछ सकता है. बट अग्र पूजा किया जाता है ताकि उसके ऊपर भी कोई हो जो उसके डिसीजंस या उसके सोच को इसके ऊपर एक सवाल उठा सके. उसके लिए अग्र पूजा किया. और अग्र पूजा में पहला नाम किसका आया था? भीष्म पितामह का नाम आया. नकुल और सहदेव ने भीष्म पिता का नाम डाला था, बट बाद में ये लोग ने बोला नहीं, कृष्ण है, कृष्ण को ही बनाना चाहिए. और जब ये नॉमिनेशन हुआ तब शिशुपाल चालू हो गया. रेडी कैसेट था, प्ले करता तो चालू हो गया, तभी उसको मार. So what he is saying is, I remember the entire Rajaswi Yajna and in the entire incident. What does he say?
In the assembly of all elite men, the royal and learned orders, and the great assembly, Lord Krishna was worshipped as one and all. That is Agra, मतलब सबसे ऊपर. Agra means first. उनको सबसे ऊपर रख के उनका पूजा किया. And I remember the incident in order to keep my mind upon Lord. So हमारा मकसद क्या है जीवन भर? भगवान के ऊपर हमको हमारा लक्ष्य केंद्रित करना. और हम लोग का लक्ष्य कैसा रहता है? बाकी चीजों पर रहता है, भगवान पे. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स एंड देन आज मुझे कंप्लीट करना है. ताम एवं अहम अजम शरीर बाजाम हृदय दिशितम आत्म कल्पितानां प्रतिदिशम इव नैकांतरकम एकम समधिगतो अस्मि विशुद्ध वेद बोहा. He says, now I can meditate with full concentration upon one Lord, Shri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconception of duality in regards to His presence in everyone's heart, even in the heart of mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. सूर्य को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, राइट? कोई जल में भी देख सकते हैं, कोई डायरेक्टली देख सकते हैं, उनके किरणों को भी देख सकते हैं, बट सूर्य सब जगह से आपको दिखेगा. सो अगेन ही इज सेइंग आई वांट टू फोकस ऑन वन कृष्णा, एंड इवन द मेंटल स्पेकुलेटर्स कैन अंडरस्टैंड. बट अगर कृष्णा वाकई में है तो हमको दिखते क्यों नहीं? हमारे साथ व्यवहार क्यों नहीं करते? जो भी हो, हम लोग हमारे हिसाब से टू आवर बेस्ट ऑफ आवर कैलिबर एंड कैपेबिलिटी वी आर ट्राइंग टू डू आवर डिवोशनल सर्विस. देन व्हाई कांट वी सी गॉड? व्हाई कांट वी इंटरेक्ट विद गॉड? व्हाट्स द प्रॉब्लम? We are not in that bhav. We are not in that bhav. Purity. Okay. Very good. Something more? Faith. Faith. Okay. We do not even have that caliber. But don't you think by saying this we are trying to run away from our responsibility? In a way, yes. In business, you want to become as big as Ambani, right? Do you ever say, no, I am not fit for it, I don't have the caliber, and sit down? Never. Every day you are in the run for increasing your wealth, increasing your duality. Okay. Something more? Speculations. No, वृंदावन में एक बाबा जी थे. True is. भगवान की कृपा करा दो हमको ऊपर. अगर कोई आके बोले ना उसको ऊपर, उसके पास जाके बोले ना, बोलेगा अच्छा कितना जमा है तेरे पास? मेरे पास 1 लाख रुपए जमा है. डंडा रख, 1 लाख रुपए में भगवान पकड़ेगा? भगवान को चाहेगा? हाँ, मारने भागेगा, भागेगा. एक दूसरा आया, और बाबा जी भगवान की कृपा करा दो, भगवान से जुड़ मिला दो. हाँ, कितने हैं तेरे पास? कितने जमा है तेरे पास? 5 लाख. 5 लाख में भगवान पाएगा? मारने डंडा लेके भागेगा उसके पीछे. तो एक आदमी आया, बोला तुम लोग सब अमाउंट छोटा है ना, मेरे पास बड़ा अमाउंट. तो गया, बाबा जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, हाँ भगवान से मिला दो. पत्थर लेके मारा उसको. पत्थर लेके. तो एक आदमी आया, बोला 1 लाख वाला हो या 5 लाख वाला हो या 1 करोड़ वाले हो, सबको आप इसी तरह भगाते हो. क्यों भगा रहे हो? आपको क्या कितने अमाउंट में मिलेंगे भगवान? हाँ, मैंने हमेशा क्या पूछा है, कितना जमा है तेरे पास? भगवान का नाम कितना जमा है तेरे पास? तेरा धन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, जब कृष्ण आए शांति दूत के लिए, तब दुर्योधन ने क्या लगाया था? 56 भोग. He said sorry, ना मुझे भूख है, ना ही मुझे यहाँ पे प्यार है. 2 जगह पे मैं खाता हूं.
आदमी सिर्फ दो जगह पे, जहां अभाव हो या प्रभाव। अभाव, where I am really hungry, I don't mind eating in anyone's place, whether even my enemy's place, मैं खा लूंगा, क्यों, मुझे भूख लगी है, I am not desperate situation. The second is प्रभाव, प्रेम। अरे एक रोटी तो खा लो आप, ठीक, उसके कहने पे पेट भरा हुआ है, फिर भी भगवान एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे, क्यों, आपने प्रेम से खिलाया। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी और के घर पे कभी भी चले जाओ, उसने और खाएगा, पूछेगा तो कौन खाएगा, नोबडी विल, नहीं खाना है, नहीं आप एक और रोटी लो, अरे माता जी एक और रोटी लो, एक और थोड़ा सा सब्जी ले लो, थोड़ा सा मिठाई ले लो, नो, थोड़ा बोल दे के ऊपर व्यक्ति थोड़ा ज्यादा खा ले, ओवर ईट कर लेते। बरस कृष्ण क्या बोले, ना तेरा मेरा खाने का अभाव है, ना मुझ पे मेरे पास तेरा कोई प्रभाव है, नहीं लाइकिंग और कनेक्शन नहीं। देन व्हाट डिड ही से? Then he said, he went to Vidura, who was not in such a lavish or in such a nice way, but he had food over there. So that is what we have to understand. First and foremost, law of karma में हम लोग क्या सीखते हैं? Offer everything to God. That is the first thing. law of karma में हम लोग वही सीखते हैं ना, कृष्णाय अर्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु बोल देते हैं। एक लेडी सत्संग में गई, सत्संग में जाके बैठी, काफी सत्संग सुना, घर में आके इसको एक समझ में आया कि भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू गॉड। तो अगला दिन सुबह सुबह घर का झाड़ू कर रही थी, सुपने में काफी कचरा जमा हो गया, बाहर गई, कृष्ण अर्पणमस्तु, बैड लक, वहीं पे नारद जी जा रहे थे, नारद जी रुक गए, व्हाट नॉनसेंस, लोग 56 भोग ऑफर करते हैं, मतलब हीरे मोती ऑफर करते हैं, अच्छी अच्छी चीज ऑफर करते हैं, तो घर का कूड़ा कचरा ऑफर कर दिए। उन्होंने वीणा से टंग करके मार दिया। तो वो बोली, अरे क्यों मार रहे हो, कल ही वो सत्संग में गई थी, महाराज बोले सब कुछ भगवान को ऑफर करो, तो मैंने ऑफर कर दिया। अच्छा, बहुत गुस्सा है, नारद ने टंग करके वीणा से दिया, कहे सीधा वैकुंठ लोग भगवान को मिलने। तो भगवान भी ऐसा हाथ पकड़ के बैठे थे, क्या हो, तुम्हारा वीणा लगा मेरे को। What did he say? तुम्हारा वीणा लगा मुझको। What does this mean? When you offer that to God, then you don't bear the reactions of it. वीणा मारा उनको, मगर लगा किनको? So it's not that, well, it doesn't mean आप लोग कल से वो चालू कर दो। The point what I'm trying to say is some people take it actually in the core level, not into the understanding the bhava behind it. But please understand, जो भी हमको देना है वो भगवान को देना है, और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान तेरा हिस्सा तेरे को, मेरा हिस्सा मेरे को। पार्टनरशिप पहले ही डील है, यू गो टू तिरुपति, यू गो टू बाकी बिहारी, हमारा पार्टनर है भगवान। भगवान ने कब बोला पार्टनरशिप डील कर? हाँ, किस भगवान ने बोला पार्टनरशिप डील कर? नहीं, हमने उसको बना दिया पार्टनर। क्यों? उसमें आपको फायदा दिखा। You did not see God in it. You saw your material benefit in it. That is why you made God. But the problem is, this material benefit is going to stay back here. It is not going to come with you. One has to be very, very clear in what is to be done. If one has to always remember God, how is it going to be possible? I asked you a question. Why we are not able to see God? You all must have heard of Sant Ramdas, Samartha Ramdas. Who is Ramdas? He was a Ram Bhakta, and he was the guru of Shivaji. शिवाजी के गुरु जी समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास ने क्या किया, सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते करते एंड में बोला, अगर विशुद्ध सत्संग हो जाए ना, आनंद आ जाए। तो उन्होंने क्या फायदा होगा? तो विशुद्ध सत्संग करेंगे ना, तो भगवान स्वयं यहां आके हमारे साथ बातचीत करेंगे।
सभी भक्तों ने बोला अच्छा तो अभी तो लेट हो गया, कल विशुद्ध सत्संग करते हैं। ठीक, विशुद्ध सत्संग, ठीक, एज यूजुअल शाम को 5 बजे सत्संग, विशुद्ध सत्संग। पहले तो ढिंडोरा पीटा गया पूरे गांव में, कल भगवान आने वाले हैं, विशुद्ध सत्संग है, भगवान प्रकट होने वाले, आप लोग आ जाओ। पूरा गांव आ गया विशुद्ध सत्संग के लिए। चालू कर दिया शाम को 5 बजे, हमारे रामदास जी ने, समृत रामदास जी ने चालू कर दिया। और सत्संग, निरंतर सत्संग कैसे कर सकते, कैसे करेंगे निरंतर सत्संग? Chanting the Lord's name. Chanting the Lord's name is the easiest way of doing satsang. He started singing, chanting the Lord's name. Sitaram, 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 Sitaram. जोर जोर से 1 घंटा 2 घंटा सब लोग एक्साइटेड, पीपल वर ऑल लाइक वाह भगवान आने वाले आने वाले आने वाले। कोई आया नहीं, भगवान कोई आया नहीं। 10 बज गया, 11 बज गया, भूख लगने लगा सबको। 11 बजे कुछ लोग एक एक करके खाली होने लगे। जैसे हमारे क्लास में भी काफी लोग बीच बीच में गायब हो जाते, तो गायब हो जाते क्यों? क्या घर पे काम, बाहर, एंड भगवान भी देखना चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? You are half-hearted, then God will also be half-hearted. If you are full-hearted, God will be full-hearted. Simple. तो इसने जोर जोर से कीर्तन करना चालू किया और लोग धीरे 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 धीरे, थोड़ा देर में तो यह हालत था। अच्छा वो जमाने में माइक नहीं था, नहीं तो माइक वाला भी माइक लेके चला जाता था, लाइट वाला लाइट बंद करके जाता था, और यहाँ तक दरी वाला भी अपना दरी लेके चला जाता। एंड में 11:30 हो गया। उस जमाने में 11:30 यूज्ड टू बी बिग टाइम, क्वाइट लेट, आज के जमाने के हिसाब से ना, उस जमाने के हिसाब से। सो ही सेड फाइनली 11:30, इवन हिज चेले चपाटिस, यू नो, सो कॉल्ड हिज डिसाइपल्स, क्या है ना, हमारे गुरुजी भाव में आ गए। अभी भाव से कब निकलेंगे मालूम नहीं। चलो जाते, अपने को सुबह उठना है, हाँ, अपने को भक्ति करना है, चलो आप लोग जाते। बेचारा बचा कौन? अकेला रामदास जी बैठे हैं, सीताराम 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 कर रहे हैं। ठीक 12 बजे हनुमान जी आ गए, विशाल का हनुमान जी आ गए, हाथ में राम सीता लक्ष्मण को हाथ में लेके, और सीताराम सीताराम करके हनुमान जी जोर से चिल्लाने लगे। तब इनका ध्यान टूटा, बोला देखो भगवान आ गए, देख लो करके चिल्लाने लगे। पीछे घूम के देखा, वो ही वॉज ऑल अलोन। हनुमान जी बोले कोई नहीं है, सब गए। कि किसी को भगवान के प्रति ना निष्ठा है, ना गुरु के प्रति निष्ठा है, ना ओडिसे पेशेंस। नो वन इज हैविंग पेशेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? धैर्य नहीं। ये 3 चीज मिसिंग है। वी आर नॉट हैविंग faith on Guru, we are not having faith on the Lord's name, and last but not the least, we are not having patience. और ये अगर ये 3 चीज हो जाए ना, अगर एक व्यक्ति के अंदर आ जाए ना, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वजह से है ना, भक्ति करने वाले व्यक्ति भी क्यों व्यभिचार करता है, क्यों मांस भक्षण करता है, क्यों शराब पीता है, क्यों जुआ खेलता है, उसके पीछे कारण क्या है? भगवान का नाम जपता भी है, मगर क्या भरोसा, टांग मार दे तू, मेरा भौतिक इंद्रिय तृप्ति रुक ना जाए, चलो मैं क्यों ना वो कर लूं। वापस दाढ़ी पे आ गए, वापस दाढ़ी पे आ गए। भक्ति के लिए टाइम नहीं मिला, समझ में। The point what I am trying to say is, जिस दिन हमारे ऊपर वो दृढ़ विश्वास आएगा, गुरु के प्रति विश्वास रहेगा, और रामदास जी ने क्या बोला था? भगवान का दर्शन होगा, विशुद्ध
सत्संग से दर्शन होगा, बट किसी को धैर्य नहीं। अरे एक रात नहीं सोए तो क्या हुआ, एक रात नहीं खाए तो क्या हुआ, मर जाएंगे। एक रात नहीं सोएंगे तो क्या होगा। कितने बार जिंदगी में कई बार ऐसे होते हैं कि रात रात भर हम लोग सोते नहीं, कारण कुछ भी हो, ग्रह का क्लेश हो या कोई टेंशन हो, बिजनेस का टेंशन हो, ऑफिस का टेंशन हो, कारण कुछ भी हो, कितने बार ऐसे होता है। पर उस वक्त भी हमको भगवान याद नहीं, और हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। सो प्लीज अंडरस्टैंड, भीष्म पितामह इज ट्राइंग टू से भाई you now I can meditate with full concentration upon that one Lord Shri Krishna who present before me, because now I have the transcendental misconception. I have transcended the misconception of duality in regards to this presence in everyone's heart. भगवान सबके हृदय में है, याद रखना। The lowest devotee is one who sees God only inside the deities. Lowest, immature. Those who see the deities and cry, they are not doing devotion. वो असली भक्ति में नहीं है। भक्ति में वो है जब भगवान उस भक्त के लिए रोए, तब वो भक्त। हम तो रोने में एक्सपर्ट है, पैदा वो आंख खोला तभी से रो रहे, इस धरती पे आए तभी से रो रहे, कोई ना कोई कारण से रो रहे हैं। जिस दिन भगवान आपके लिए रोए ना, तब समझ लो भक्ति है। One last story today and wind up the class. Probably he was not, till yet he was not sure of what is saying duality, because now I have transcended the misconception. He is just trying to say, I have transcended all misconceptions. See, that is the humbleness of a devotee. A devotee never claims, see, I'll tell you one thing. Now, to explain this, I'll tell you one story from, okay, let's cut this story. I'll tell you the story from Ramayana. Very important story. Okay? Very interesting and very enchanting story. एक बार रामचंद्र जी, आफ्टर द वॉर, रावण को मार दिया, सभा लगी हुई है, तो अपने भगवान रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और मंत्रियों ने एक सजेशन निकाला कि आज से ना, इतना दिन से हम लोग रघुकुल, रघुनंदन, रघुकुल बोल रहे हैं, मतलब क्या, रघु के वंशज, बराबर। अब से ना हम लोग रघुकुल नहीं बोलेंगे, रामकुल। क्यों? राम, अभी राम हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही इज परम पुरुष परमात्मा, सो हम उसका कुल से बोलेंगे। वी विल स्टॉप दिस प्रथा ऑफ रघुकुल एंड रघुनंदन। So everyone said unanimously, yes, yes, like the shout in parliament. Everyone shouted. But one sadhu, one old sadhu was there. He was silent. He didn't say anything. And that's the greatness of Ramchandra ji. Ramchandra ji saw him. उसने देखा कि वो साधु बोल नहीं रहा है कि रघुनंदन छोड़ के अभी रामनंदन बोलना है. He was not ready. तो उसने बोला उसको, क्या हो गया? नाराज, क्या हो गया? सहमत नहीं हो? नहीं, मैं सहमत हूं और नहीं भी हूं, क्या फर्क पड़ता है? इतने लोगों ने सहमत दी तो आप रख लो वैसे। नहीं, आप बताइए, आपका कारण बताइए। तो अच्छा देखो, आप भले ही आपने इतना जाके रावण को मारे, कितना परिश्रम किया, वानरों को, बंदरों को, भालुओं को इकट्ठा किया, पुल बांधे, वहां गए, सब किए, बट एक्चुअली आपका पराक्रम नहीं, एक्चुअली ये आपका पराक्रम नहीं। जब उसको बोला मेरा पराक्रम नहीं है, रामचंद्र जी भी पूछने ऐसा कैसा? मैं खुद गया, खुद इतना मेहनत किया, सीते सीते करके गया, एंड में जाके मार के आया, हाँ बोलते हो मेरा पराक्रम नहीं है, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। बोला देखो, आपको पता है जब महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे दिन, तो पीछे रावण आके खड़ा हुआ। रावण को तभी से क्या था, ऑल राक्षसों हैव गॉट दिस मस्ती, मैं तुझसे युद्ध लड़ना चाहता। इवन व्हाइल हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, एवरीवन वांटेड टू फाइट विद लॉर्ड। सो ही सेड
तो लड़ना। तो ही वॉज डूइंग संध्या वंदन, तो संध्या वंदन कर रहा था। तो संध्या वंदन होने के बाद एक हाथ में थोड़ा जल लिया और साउथ साइड पे जल को फेंका। Brahman was also quite have knowledge, well knowledge in the Vedas and all that. बोला मैंने आज तक ये देखा नहीं कि किसी भी संध्या वंदन में ऐसा जल उठा के दक्षिण दिशा में डालते हुए। तो नहीं क्या है ना, दंडकारण्य फॉरेस्ट में एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था और वहां पे उसकी गाय को अटैक करने के लिए एक शेर आ रहा था। तो मैंने जल डाल के उस शेर को मार दिया। डेंजरस मेरे को नहीं दिखता, इसको दिखता है। बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम विद डेमन्स, दे थिंक दे आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट। तुरंत गया, चेकआउट करके आता हूँ। ये फास्टेस्ट प्लेन, जेट प्लेन ना, पुष्पक विमान, रिंग गया दंडकारण्य में, जाके देखा वाकई में वो साधु रो रहा है, रघु महाराज की जय हो, एंड मेरा गाय अगर मर जाता तो मेरा एक ही सहारा था, मेरा यज्ञ के लिए गोबर ये वो सब उसी से मिलता था, मेरा दूध से मेरे बच्चे खा पीते थे, तो मैं क्या करता। बराबर बोला, झूठ। तो वापस आया, आपको सब दिखता? हाँ मुझे सब दिखता है। मेरी प्रजा, अगर मैं यहाँ संध्या वंदन भी कर रहा हूँ, प्रजा क्या कर रही है, मेरे को कहाँ किधर क्या तकलीफ है, दैट्स वाज द लेवल ऑफ रघु। तो इसने बोला अच्छा आज आप ब्राह्मण को सब देते हो? हाँ मैं ब्राह्मण को सब देता हूँ। तो एक काम, अब संध्या वंदन हो गया, आप मैं भी ब्राह्मण हूँ, इस सन ऑफ अ ब्राह्मण ना, विश्वा का लड़का ना। तो उसने बोला कि मुझे आप भीख दे दो, दक्षिणा दे दो कि मैं आपसे युद्ध करूं। तो बोला मैं तेरे से युद्ध नहीं कर सकता। क्या है, युद्ध बराबर में होता है, यू आर नॉट इक्वल टू। हाउ डू यू मीन, यू नो हु आई एम। इंद्र को परास्त किया, ये किया वो किया। तो याद रखना, जब भी कोई मैंने किया बोला ना, तो समझने का कि वो असुर है, रावण है। मैंने किया। तो बोला ठीक है, तुमने ये सब किया, ठीक। इधर वो सरयू किनारे वापस संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसने उंगली से रेत में ऐसा हाथ किया और फिर मैप ऑफ लंका बनाया। ये है ना तेरा लंका, ये तेरा महल है, ये तेरा कारागार है, ये तेरा शस्त्र रखने वाला है, ये तेरा महल है, यहाँ तेरे अशोक वन है, अशोक वाटिका है, ये वो सब। हाँ बराबर को कैसा तो दिखता है, सब दिखते हैं मुझे। अच्छा हाँ, तो अच्छा इसमें तो क्या होगा, भाग ऐसे मिटा दिया उसने, छोटा सा भाग मिटा दिया। ये तेरा पूरा लंका का ये भाग चला गया, जाके देख ले। He went and he saw that part of Lanka was finished, not to be seen. ये समझ गया, ये अपना बस की बात। He is not my cup of tea. मैं इससे युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, तब मैं क्या करूं। उसने सोचा इसका बल क्या है। कोई भी व्यक्ति का, शक्तिशाली व्यक्ति का बल होता ना, is because of the chasteness of his wife. When a wife is chaste, पतिव्रता होती है ना, तो पति के अंदर ऐसा बल आता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। दिस इज अ ट्रेजेडी इन मॉडर्न टाइम्स कि आज के जमाने में ये पतिव्रता वाली नारी आज है, बट जिस तरीके से हम केसेस सुन रहे हैं वो शुद्धता अब कम हो रही है। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग नहीं, कलयुग का प्रभाव। सो a lady who is chaste is so powerful. Sita, what did she say? Ravan, don't think I cannot kill you. I can kill you in 1 minute. Just with that तृण घास का एक घास से मैं इसको ब्रह्मास्त्र बना के मैं तुझे मार सकती हूँ, बट नहीं मार रही। क्यों? मैंने घास तेरे सामने रख दिया क्योंकि तू एक पशु समान है। वेदों का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। वेदों का ज्ञान होने के बाद भी वेदों के अनुसार अगर जीवन निर्वाह नहीं किया, इफ यू डोंट लिव लाइफ एज पर द वेदास, यू आर लिविंग एज एन एनिमल। तो he said, now I will do is I will try to break the chastity of his wife, then I will be able to conquer Raghu. So he went into the palace of
Maharaj Raghu in the form, in the disguise, like how Indra went in the form of Gautam Rishi, he took the form of Raghu. People did not notice him, but the minute he entered the palace, जब वो राजा के महल में घुसा, तब उसकी पत्नी को समझ में आ गया कहाँ वो और कहाँ ये बहरूपिया, एंड इमीडिएटली शी वैनिश्ड, मतलब अपने आप को वो इनविजिबल कर दिया. इमीडिएटली दिस फेलो फाउंड आउट, भाई यहाँ तो अपना दाल गलने वाला है, वहां पे नहीं गला, यहाँ पे भी नहीं गला, चलो कपचुप निकल जाते हैं. कपचुप निकल गया. शाम को रघु आया तो पत्नी दुखी थी, क्या हो गया, क्यों दुखी क्यों है? तो पत्नी ने बोला देखो ऐसा ऐसा रघु आपके वेश में रावण आया था और मैं काफी अपसेट हूं उससे. बोला ये बहुत हो गया इसका, अब इसको खत्म करना पड़ेगा. तो उसने क्या किया, अपना क्यूअर, तर्कस बोलते ना उसको, क्यूअर से उसने एक बाण निकाला, एंड ही वाज अबाउट टू लोड इट ऑन द बो. इमीडिएटली ब्रह्मा जी केम रनिंग, प्लीज प्लीज, क्या हो, मैंने इतना सारे चतुर्युग के लिए उसका आयु दिया है तो मेरा आशीर्वाद विफल हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए, उसको मारना मत. बोला ओके आई रेस्पेक्ट यू, बट मैं क्या करूँ, ऑलरेडी मैंने बाण निकाल दिया, आई कैन नॉट कीप इट बैक. अब मैं क्या करूँ, या तो आई हैव टू फायर इट और व्हाट शुड आई डू. इज इट, आप मुझे दे. तो ब्रह्मा जी ने वो बाण रख लिया. चिंता मत करना, इसी बाण से रावण का वध होगा, वो बोल के उन्होंने बाण ले लिया. जब रावण को पता चला, रावण स्टार्टेड डूइंग घोर तपस्या. मुझे पहला ब्रह्मा जी को तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, बोला क्या है, बोला नहीं मुझे अमर बनाओ. सॉरी कोई अमर नहीं है, मैं भी मरने वाला हूं, तुझे भी मरना पड़ेगा एक दिन. फाइन, तो अब द लास्ट रिसोर्ट इज, एक काम करो मुझे वो बाण दे. बोला ठीक है बाण ले ले, मरेगा तो इससे लेके जा. ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही डिडंट टेल एनीवन इन द वर्ल्ड. उसने कपचू वो बाण लेके गया और अपना जो बेडरूम था उसका पिलर के अंदर चुनवा दिया उसने. इसके लिए लोग कहते हैं ना रावण का प्राण पाट से बंधा हुआ था, बोलते हैं ना पाट से, वो पाट नहीं था, वो एक पिलर में चुनवा दिया. रोज का पूजा पाठ करता था और किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक आदमी को बताया, मंडोदरी को. हर आदमी है ना, कितना भी कमी ना क्यों ना हो, वाइफ को बोल देता है. क्यों, उसके सामने हीरो बनना चाहता है. तो यहां पे जैसे उसने बाण अंदर रख दिया और युद्ध शुरू हो गया था ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी राम वाज फायरिंग द एरोस. रावण का सिर कट रहा है और दूसरा सिर बाहर आ रहा है, चल रहा था. तो जैसे ये हो रहा था, मंडोदरी बहुत दुखी थी और राम भी परेशान, क्या करूं, कितना मारूंगा, वो कट रहा है वापस दूसरा आ रहा है, एंडलेस. तो विभीषण बोला नहीं 30 टाइम्स. तो इसने बोला, विभीषण को बोला, विभीषण की तरफ देखा, तो विभीषण बोला देखो कुछ तो है, अमृत है उसके पेट में और एक सीक्रेट है. मैं सुना था कि एक बाण था जिससे वो मरने वाला था, बट वो बाण किधर रखा है किसी को, मुझे भी पता, मगर शायद मंडोदरी को होगा क्योंकि बीवी को पता. ठीक. तो इमीडिएटली लॉर्ड रामचंद्र जी लुक्ड एट हनुमान, जेम्स बॉन्ड 007 और बेस्ट स्पाई एजेंट. तो सब ऐसे सीक्रेट मिशंस पे वही जाते हैं. ये सुंदरकांड वाज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक. फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक वाज इन सुंदरकांड. परफेक्ट गया, अपना काम किया, जला के लंका को जला के आ गए, काफी सारे राक्षस को भी मार के आ गए. सो वी आर द ओरिजिन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक इज सनातन धर्म. तो हनुमान बोला ठीक है, आई एम ऑन मिशन. इमीडिएटली ही टुक द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा एंड ही वेंट टू डायरेक्टली टू मंडोदरीज पैलेस. रावण की जय हो, रावण का जय हो, रावण का जय हो. मंडोदरी बोली मैं इतना परेशान बैठी हूं, यहाँ बाण मारे जा रहे हैं मेरे रावण के ऊपर, रावण का सिर कट के गिर रहा है, वापस आ रहा है, वो अलग है, पर मेरे पति का मुझे टेंशन है ना, और तुम बोल रहे हो रावण की जय. कुछ नहीं होगा रावण को, मुझे मालूम है ना, उसके पास एक बाण है.
जिसका वो पूजा कर रहा है, एज वी न्यू एवरीथिंग, बड़ा ज्योतिष बन के सब बोला, जैसे बोला पत्नी मंडोदरी खुश हो गई, हाँ मेरे को बोले थे इसी दीवार के पीछे रखे हैं, इसी पिलर के पीछे रखे हैं, बोले थे कि जब तक ये बाण नहीं निकलेगा ना मेरे मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी, हाँ अच्छा इधर ही है, yeah, zoom man, one punch and the beam was broken, he took the arrow, came back, बाण लेके आ गए, रामचंद्र जी को दिया, 30वां फायर किया है, 31st वाला ये लीजिए, तो 31st arrow he put it on the bow and he fired. तो that Brahmana who was telling Ramchandra ji, he told, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, ये बाण भी रघु का था जो चला के रावण मरा, तो आपने कुछ नहीं किया, and he could not do because he was in a Naralila. Please don't underestimate or undermine God, please. समझ लीजिए, he was doing the नरलीला, तो नरलीला की वजह से ऐसा उनको, he acted as if he was innocent, he was powerless, he was helpless. So that's why Lord also is very happy not taking credits. That is the greatness of God. God doesn't want to take credits, but we humans, without doing anything, we want to take, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, we are interested in taking credits, but God is not interested in taking credits. So with this we are concluding Bhishma Stuti. Next time we will continue with the further things and then we will start with chapter 10. Okay, anybody has got any doubts, questions, can ask. This was very good story.